Hello, dear friends. In the line of NCRT lectures, we are here with the projectile motion. In the previous lecture, I have discussed about the relative velocity formula and example 4.6 to explain the relative velocity in the vector form. So, projectile motion. What is the projectile motion? An object that is in flight after being thrown or projected is called projectile. For example, football, cricket ball, any stone thrown on the ground. This follows the path known as the projectile path. Okay? And the path, nature of the path is parabolic. In mathematics, there is a figure known as parabola. So that projectile follows a path known as parabola. Okay? So this is considered as a result of two separate simultaneously occurring components of motion. Means suppose a projectile is thrown with velocity v from an angle with the horizontal theta, then that velocity v, starting velocity v0 suppose कर लो, तो उसको दो component motions में अलग अलग हम देखेंगे. One component of that velocity is along the horizontal direction without any acceleration, and the other along the vertical direction with constant acceleration. Why constant acceleration? Because force of gravity or acceleration due to gravity is acting downwards towards the earth. This idea was given by Galileo. So let us see the figure. This is the velocity v0 with which a stone is thrown or a projectile is thrown, and this velocity v0 is making an angle theta 0 with the x-axis or the ground level. Theta 0 angle it is making. So from the cosine law, this component will be v0 cos theta 0, horizontal component in the x direction, and in the y direction it is v0 sin theta 0. So this horizontal component remains constant throughout the motion because there is no horizontal acceleration acting. But the vertical acceleration, you see, minus g is acting. Okay, vertical acceleration is acting in the downward direction. Therefore, this vertical component velocity will be affected by this, and therefore it will be varying with respect to time. Okay, but v0 cos theta 0 will remain constant. So projectile motion may be considered as made up of two motions. One is along the horizontal direction and another is along the vertical direction. So what is acceleration? Acceleration is vertically downward. So minus unit vector j vector is associated with g. Minus g j. Okay. So acceleration in the x direction is 0. Horizontal direction acceleration 0. Okay. So what are the components? v0x, initial velocity component in the x direction v0 cos theta 0, and initial velocity component in the y direction means vertically upward direction is v0y, that is v0 sin theta 0. अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम अलग अलग एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन को मान लो ओरिजिन है, यहाँ से स्टोन को या प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है. ठीक है, so what is x0 is equal to 0 here and y0 is equal to 0 here. This is the starting point of the projectile. Now if we apply the equation r is equal to r0 v0 t plus half a t square, this is a vector equation. It represents two equations, one in x and one in y. Okay, so if you apply this equation, in the x direction, so r0 is 0. r0 means starting point के लिए x0, x के लिए लगाओ तो x0 0 है यहाँ पे, and v0t, तो v0x आ जाएगा यहाँ पे, v0x into time आ जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये टर्म 0 हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू v0x into t आएगा खाली. सो v0x की वैल्यू v0 cos थीटा 0 into t हो गया, ये t हो गया अलग से. अब y कितना हुआ, y में भी यही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे. तो y इज इक्वल टू y0 प्लस v0 y t. तो v0 y कितना है, v0 sin थीटा 0, और इसके साथ में t आ गया. r0 कितना है 0, y0 इज 0, एंड हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज माइनस g. सो यू सी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस जी यहाँ पे लग गया
और हाफ टी स्क्वायर पहले से है, तो इस इक्वेशन को लगा के हमारे पास x ये मिला और y ये मिला। ठीक है, अब कंपोनेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या हो जाएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट वेलोसिटीज एट एनी टाइम t। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वेशन v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ये इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v0 cos थीटा 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v0 cos थीटा 0, एक्सेलरेशन है नहीं, ये टर्म 0 हो जाएगा इसके लिए। और vy क्या हो जाएगी, एट एनी टाइम वेलोसिटी vy will be given by this formula। So v0 sin theta 0 is starting y velocity and this a is minus g। So with the help of these two equations we get this relation। Now this equation equation 4.38, two equations there are x and y। If we eliminate t in these equations, then we get a path of motion। Path of motion will be parabola। Okay, now at any point the velocity has two components vx and vy which are given by these equations। And what is the angle that velocity is making at any time? Suppose at this point of time we have certain velocity v, so it will have two components vx and vy which are given by this equation, vx and vy which are given by these two equations। vx is equal to v0 cos theta 0 and vy is equal to v0 sin theta 0 minus gt। Okay, what is the angle, tan theta is equal to y component upon x component। तो tan theta is equal to vy upon vx जो है अपने को मिलेगा। और टॉप पॉइंट पे अगर हम इसको देखेंगे, टॉप पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ टॉप पॉइंट आएगा कहीं पे इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि उसके ऊपर नहीं जाएगा, टॉप पॉइंट आएगा, तो उस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे 0 आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन vx, वट एवर vx इज देयर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल? फॉर द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वी हैव टू एलिमिनेट t। तो एलिमिनेट t कैसे करेंगे भैया? एलिमिनेट t करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t हो गया x अपॉन v0 cos थीटा 0 और इस इक्वेशन में रख दो। तो ये काम किया गया है। देखिए y इज इक्वल टू tan थीटा 0 x माइनस g अपॉन 2 v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, now this equation is of the type y is equal to ax plus bx square। okay, you see this equation is of the type y is equal to x plus bx square and this is the equation of the parabola। पैराबोला किस तरीके का होता है, ये देखो, ये पैराबोला का शेप आ गया यहाँ पे। टॉप पॉइंट पे देखिए vy 0 हो गया है। ठीक है, तो ओनली वेलोसिटी इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पे कितना होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? उतना ही होगा जितना इनिशियल में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इट विल नॉट बी चेंजिंग। कहीं पे भी लेंगे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको मेंशन कर दें तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट इज अचीविंग। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, h तक पहुंचा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ y 0 है, y कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है। इस फैक्ट का यूज करेंगे और हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे तो vy इज इक्वल टू v0 sin थीटा 0 इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन माइनस g and tm, time to reach the maximum height। now vy as I told you is 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो tm कितना आएगा भैया? tm आ जाएगा v0 sin थीटा 0 अपॉन g। ठीक है, तो ये हो गया टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। अब हमको पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करने में पत्थर जमीन पे कब तक आ जाएगा, पत्थर को फेंका गया तो पत्थर जमीन पे कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक इक्वेशन और यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 4.38 यूज करने को बोलता है। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन 4.38? वी हैव टू गो बैक टू इक्वेशन 4.38।
लेट अस सी व्हाट इज इक्वेशन 4.38. ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू v0 sin थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम हाइट पे निकालना है. ठीक है, सॉरी, y की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जमीन से पत्थर फेंका था और जमीन पे वापस आ गया है, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे. y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो t कॉमन, तो t की वैल्यू आइदर 0 आएगी या फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2 v0 sin थीटा 0 अपॉन g. इसका मतलब है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट of the projectile TF is 2 v0 sin theta 0 upon g. और हम देखते हैं कि ये टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट का डबल है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरने में, जमीन पे आने में लगता है. ठीक है, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज v0 sin theta 0 upon g and time of total flight is 2 v0 sin theta 0 upon g. We have to remember these formula very carefully. So students, let us move to our next article, maximum height of the projectile. अरे भाई प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा जाएगा, h निकालना है. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया गया है, 4.38 का फिर से यूज किया गया है उसी इक्वेशन का, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का फिर से यूज किया गया है y डायरेक्शन में. hm इज द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो देखिए इसको मैंने यहाँ कैपिटल H लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इसको HM लिखा है. कोई बात नहीं, आप कुछ भी आप इसको मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटेशन सारी हो. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए u क्या है, y डायरेक्शन में v0 sin थीटा 0, तो ut टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट कितना था, v0 sin थीटा 0, तो ut हो गया माइनस हाफ g और t स्क्वायर, v0 sin थीटा 0 अपॉन g का होल स्क्वायर. इफ यू सॉल्व दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, HM की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी भैया, वो मिलेगी ये. तो आपको पहली बात तो ये है कि ये फॉर्मूले अच्छी तरह से रट लेने हैं, बिना फॉर्मूले के काम आपका चलने वाला नहीं है. इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये फॉर्मूले मेमोराइज कर लेने. ठीक है, और जो बातें बताई जा रही है ये फॉर्मूला भी मेमोराइज करना है. y इज इक्वल टू tan थीटा 0 x माइनस g बाई टू v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. तो किस तरह का फॉर्म में, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर है, a की वैल्यू tan थीटा 0 है और b की वैल्यू माइनस g बाई टू v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर. ओके, ये b की वैल्यू माइनस साइन के साथ. ठीक है, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ यूज होगा, मैं बाद में न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा. ठीक है, तो टाइम टू हाइट, मैक्सिमम हाइट which a projectile achieves if it is thrown with velocity v0 with an angle making with the ground theta 0 is given by this formula v0 square sin square theta 0 upon 2g. इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. देखिए v0 square sin square theta 0 upon g और यहाँ 2 आ जाए. ठीक है, v0 square sin square theta 0 upon 2g मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, उससे कंपेयर करना है. उसमें क्या फॉर्मूला आता है, उसमें पहले ही बता देता हूँ क्या फॉर्मूला आता है उसको. ये देखिए फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं और इसमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, यहाँ v0 स्क्वायर है, यहाँ भी v0 स्क्वायर है. ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज है यहाँ से पत्थर फेंका तो जमीन पे कितना दूर जाएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल में कवर्ड डिस्टेंस जो होगी वो रेंज कहलाती है. तो दिस इज आर. ठीक है, तो अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूले के लिए क्या करें. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लेंगे. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 cos थीटा 0 रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, कभी भी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं हॉरिजॉन्टल में. ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट. यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट tf है, तो r कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ बच्चों v0 cos थीटा 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. तो v0 cos थीटा 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2v0 sin थीटा 0 डिवाइड बाई g. अब ये ऊपर वाला जो फैक्टर है ये क्या है, ये इसको हम v0 स्क्वायर लिख लेंगे
और फिर लिखेंगे 2 sin थीटा 0 cos थीटा 0। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स में फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। इधर साइड में जो है डबल ऑफ दैट एंगल है, तो इधर साइड में हाफ ऑफ दैट एंगल। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला से ये रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, तो रेंज के फॉर्मूले में और अभी जो मैं बता रहा था ये हाइट के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? v0 स्क्वायर तो दोनों में है, तो हाइट के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा 0 है और रेंज के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा 0। इन दोनों एक्सप्रेशन में जमीन आसमान का फर्क, समझ में आया? और नीचे क्या है, हाइट के फॉर्मूले में नीचे 2g है और रेंज के फॉर्मूले में नीचे g है। बाय कंपेयरिंग दिस टाइप वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज गिवन हियर। ओके, so these are important formulas. And what is the maximum height achieved? Maximum height will be achieved when this factor will be maximum, and for this factor to be maximum, this sin 2 theta 0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 2 थीटा 0 कितना होना चाहिए, साइन 2 थीटा 0 और मैक्सिमम रेंज R is maximum, R is maximum when sin 2 theta 0 is maximum. So let us see here, sin of 2 theta 0 is maximum and its maximum value is 1. 1 किसका होता है, sin 91 होता है। तो we will write sin 2 theta 0 is equal to sin 90 डिग्री। ओके, दोनों साइड से साइन हटा दीजिए तो आ जाएगा 2 थीटा 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 थीटा 0 इफ इट इज 90 डिग्री, तो भैया थीटा 0 कितना हुआ, थीटा 0 हुआ 45 डिग्री। इसका मतलब है कि आपको कोई पत्थर सबसे दूर तक फेंकना है, मैक्सिमम रेंज अचीव करनी है, तो उस पत्थर को आप 45 डिग्री पे फेंकेंगे। इस फैक्ट का यूज मिलिट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि मिलिट्री में जो है प्रोजेक्टाइल्स फेंके जाते हैं तोप से, कैनन से, ठीक है, तो उसमें इसका यूज बहुत होता है। अब ये एग्जांपल 4.7 क्या कहता है, लेट अस सी दैट गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस stated that for elevation which exceeds or falls short, let me highlight it, for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal. तो एलिवेशंस जो होते हैं, जो मान लो किसी थीटा 0 एंगल पे हमने फेंका, ठीक है, और वो थीटा 0 एंगल से 45 कम करेंगे या तो 45 ज़्यादा करेंगे, ठीक है, 45 एंगल से थीटा 0 कम करेंगे और थीटा 0 ज़्यादा करेंगे, तो उन दोनों पे जो है रेंजेस इक्वल होंगे। इसको हम फिजिकली कैसे समझ सकते हैं, इसको हम फिजिकली ऐसे समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम मैथमेटिकली करेंगे, पहले हम इसको फिजिकली समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो गैलीलियो कहता है कि अगर 45 डिग्री पे हमने कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो ये समथिंग लाइक दिस ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 45 माइनस थीटा पे फेंकेंगे, 45 माइनस थीटा पे, तो 45 माइनस थीटा, ये 45 प्लस थीटा हुआ, ये हुआ 45 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है 45 माइनस थीटा 0, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये 45 प्लस थीटा हो गया। इन दोनों पे रेंजेस सेम रहेंगी। इस पे अगर हम फेंकते हैं तो ये मान लो कि कहीं यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल, तो इस पे जो है फेंकेंगे तो भी ये यहाँ पे ही आएगा, मतलब ये जो है दोनों की रेंज सेम होगी, ठीक है। इस रेंज का नाम आर डैश दे देते हैं, ये आर डैश, यानी का मतलब है 45 प्लस थीटा पे फेंको या 45 माइनस थीटा पे फेंको, तो दोनों ही प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी मस्ट बी सेम। ये जो v0 इनिशियल वेलोसिटी है
वो दोनों केस में सेम होनी चाहिए, तो उसकी जो रेंज होगी वो सेम होगी. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गैलीलियो. नाउ सी दिस मैथमेटिकली. For a projectile launched with velocity v0 at an angle theta 0, the range is given by, रेंज का फॉर्मूला है आपका v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई g. मैंने आपको बताया था यहाँ 2 थीटा होता है, रेंज के फॉर्मूले में नीचे अकेला g होता है. ठीक है, आप 45 प्लस अल्फा रखो या 45 माइनस अल्फा. ठीक है, तो 2 थीटा 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 0 की जगह 45 प्लस अल्फा रखेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2 अल्फा. और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 45 माइनस अल्फा रखेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा. ठीक है, तो दोनों से जो है सेम वैल्यू आएगी. ठीक है, दोनों से वैल्यू कितनी आएगी, 90 प्लस 2 अल्फा यहाँ पे रखो या 90 माइनस 2 अल्फा रखो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. ओके, सेम आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 2 अल्फा हो जाएगा. यहाँ पे मैं एक रख के दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप एक रखिएगा तो कितना आएगा, v0 स्क्वायर साइन 90, ये वाली वैल्यू रखो तो 2 अल्फा आया, और साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी कितना आया, v0 स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी. अब दूसरा वैल्यू रखोगे तो भी वो भी इतना ही आएगा. इसका मतलब है कि ये जो रेंज है, रेंज विल बी इक्वल. ये समझाया है. अब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है हमारे इस एग्जांपल में. लेट अस सी दिस एग्जांपल फर्स्ट बिफोर गोइंग अहेड, और बाकी एग्जांपल देखने से पहले ये देख लेते हैं. ठीक है, अब क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी v0 दिया है, डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, थीटा 0 दिया है. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल. ये तो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है. सी क्या पूछता है, डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न, ये रेंज पूछ रहा है. ठीक है, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है बी में. पहले में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, एच पूछ रहा है. इन तीनों का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, जरा याद करिए क्या है. एच कितना है, v0 साइन थीटा 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाई 2g. तो ये वैल्यू रख दी, देखिए वैल्यू रखेंगे तो आपका 10 मीटर आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2v0 साइन थीटा 0 अपॉन जी. 2v0 साइन थीटा 0 अपॉन जी कितना आया, 2.9 सेकेंड आ जाएगा. ये कैलकुलेटर में आपको अपने हाथ से करने का है, कहानी राम कथा नहीं चल रही है यहाँ पे. बराबर है, आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके करना है बच्चों. सी पार्ट में क्या पूछता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल. सेम लेवल का मतलब है ग्राउंड पे, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड पे आया. इसका मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर. ठीक है, उस पॉइंट की. तो रेंज पूछ रहा है, रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी. तो v0 स्क्वायर 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा 0 इज साइन 60 अपॉन 9.8. थीटा 0 30 है ना, इसलिए 60 हो गया. साइन 60 कितना होता है, √3/2. तो सब वैल्यू साइन 30 साइन 60 एटसेट्रा सब आपको याद होनी चाहिए वैल्यू. तो ये 69 मीटर आ गया आपका. तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन का एक सिंपल और छोटा सवाल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करता है. उसके फॉर्मूले आपको बताता है कि आप याद रखो फॉर्मूले. ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों यही रहेगा, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी के पॉइंट्स. कौन से, द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स, ये वाला 4.8 and next example, and then we will have the next article. Until then, goodbye. Okay.